Hello, my dear student. I am Professor Harshal Nigam, Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome you all in last lecture of this unit, IC voltage regulator and SMPS. So let's start with some course outcome and its program outcome mapping. Here it shows the course outcome for this unit, that is maintain IC voltage regulator and SMPS, and its PO mapping is this. Means I map here this course outcome, that is maintain IC voltage regulator and SMPS, with the 10 number of POs. This 10 number of POs are suggested by the NBAs, and this course outcome is mapped like PO1, that is basic knowledge, is mapped at a level 1. Similarly, PO2 means it is related to the discipline knowledge at map at a level 3. Similarly, like PO10, that is lifelong learning, is mapped at a level 1. Here this slide shows the learning outcome of today's session. Means after completing this today's lecture, you all are able to draw the block diagram of SMPS. Means आज का सेशन खत्म होने के बाद आप SMPS, that is switch mode power supply, SMPS का मतलब होता है switch mode power supply, इसकी ब्लॉक डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो. Write features of SMPS. This is very important question, that is फीचर्स ऑफ SMPS. मतलब SMPS में ऐसे क्या फीचर्स हैं उसको आप लिख सकते हो. एंड थर्ड वन इज ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ SMPS. SMPS की ब्लॉक डायग्राम आप ड्रॉ तो कर सकते हो लेकिन उसको साथ में एक्सप्लेन भी कर सकते हो. सो दीज आर सम लर्निंग आउटकम्स आर will achieving after completing our today's session. Before going to in detail about the SMPS, you must to know some prerequisite knowledge. That prerequisite knowledge मतलब आपको कुछ previous knowledge होना ज़रूरी है before going to in detail about the SMPS. That is types of IC voltage regulator. IC voltage regulator के बारे में हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़े हैं, और वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है और उसके क्या टाइप्स होते हैं ये भी आपको पता होना ज़रूरी है. ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीसी पावर सप्लाई. डीसी पावर सप्लाई की ब्लॉक डायग्राम भी आपको अच्छी तरीके से ड्रॉ करते आनी चाहिए और उसको एक्सप्लेनेशन भी आना चाहिए. Here this slide shows the features of switch mode power supply. The important features of SMPS is, very first one is it is operated on transistor. You know very well ट्रांजिस्टर के बारे में हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर में भी पढ़े हैं कि ट्रांजिस्टर इज यूज फॉर स्विच ऑल्सो. ट्रांजिस्टर का यूज हम स्विच करके भी यूज कर सकते हैं. मीन्स इफ द ट्रांजिस्टर इज गोज इन एक्टिव रीजन then it will on, and if the transistor is in goes in cutoff region then it will off. That's why this transistor is used for a SMPS purpose. Switching frequency is 25 kilohertz. जो भी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी रहेंगी मतलब ऑन और ऑफ इसके बीच का जो टाइम रहेगा, द टाइम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड एज स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, and it is up to the 25 kilohertz. Power is low. SMPS consume low power. This is very important feature. Very good regulation. इसका जो रेगुलेटिंग है जो हम चेंज कर सकते हैं इसको, रेगुलेशन का मतलब है एट अ कांस्टेंट वोल्टेज, वो भी बहुत अच्छा है. Here it shows the block diagram of SMPS. In that the 4 blocks are used.
Very first block is input rectified and filtered. Second one is high frequency converter. Third one is output rectified and filter. And fourth one is control circuit. This input rectified and filter is very different than this output rectified and filter. These two are never same. Here we applied the input of having 50 Hz frequency. This input rectified and filter is used for to convert this AC signal into DC, and filter out means we can remove the AC ripples present in the rectified output with the help of this filtered circuit. This filter circuit is consisting from capacitor or inductor. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है डीसी ब्लॉक डायग्राम में कि रेक्टिफायर सर्किट और फिल्टर सर्किट क्या करता है। रेक्टिफाइड सर्किट हमें पल्सेटिंग डीसी आउटपुट जनरेट करके देता है और फिल्टर सर्किट उसमें से जो भी एसी रिपल्स है उसको रिमूव करता है। आफ्टर दिस आउटपुट गेटिंग फ्रॉम दिस इनपुट रेक्टिफाइड एंड फिल्टर we can apply this output to the high frequency converter. Now here the important role of BJT और MOSFET मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर में हम BJT का यूज कर सकते हैं या फिर MOSFET का यूज कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे MOSFET का यूज अगर करते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यहाँ से जनरेट होंगे आउटपुट से और उसका स्विचिंग टाइम भी फास्ट होगा, इसलिए हम ज़्यादातर हाई फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर में MOSFET का यूज करते हैं। तो दिस हाई फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर जनरेट्स द फ्रीक्वेंसी अप टू 15 to 50 किलोहर्ट्ज. Okay, now this frequency is applied to the output rectified and filter. Now this output rectified and filter circuit is very different than this input rectified and filter. ओके यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी फिर से जनरेट होंगे देन दिस इनपुट रेक्टिफाइड एंड फिल्टर एंड दिस आउटपुट इज डायरेक्टली फेड टू द कंट्रोल्ड सर्किट. नाउ कंट्रोल सर्किट is consisting from some PWM means pulse width modulation, which is having some duty cycle and which generates the constant voltage. मीन्स ये जो कंट्रोल सर्किट है ये कांस्टेंट वोल्टेज जनरेट करने के लिए हमें मदद करेगा, कांस्टेंट डीसी वोल्टेज जनरेट करने के लिए. ओके क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर से यहाँ से हमें एसी सिग्नल जनरेट होंगे, फिर से हम उसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रेक्टिफाइड एंड फिल्टर, एंड कंट्रोल सर्किट उसको रेगुलेट यानी कांस्टेंट करने के लिए मदद करेगा with the help of PWM circuit. So these are some terminology related to the block diagram of SMPS. We can discuss some important point in next slide. So here are some important points related to the block diagram of SMPS. The very first one is rectifier and filter converts AC supply into pulsating DC and capacitor use as a filter element. ये हमने previous slide में discuss किया है कि rectifier and filter ये दोनों AC सप्लाई को पल्सेटिंग DC में जनरेट करेंगे यानी कन्वर्ट करेंगे, तो फिल्टर सर्किट के लिए हम कैपेसिटर का यूज करेंगे. हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग जो सेकंड ब्लॉक है अपना हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग आफ्टर रेक्टिफायर एंड फिल्टर इनपुट साइड से अगर आते हैं तो उसमें हम इट इज यूज मॉसफेट और बीजेटी टू कन्वर्ट द डीसी वोल्टेज टू हाई फ्रीक्वेंसी एसी स्क्वायर वेव. जो भी रेक्टिफायर और फिल्टर से जो हमें पल्सेटिंग डीसी आउटपुट आएगा उसका हम कन्वर्शन कर रहे हैं डीसी वोल्टेज में बट हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी एसी स्क्वायर वेव में, यानी हमें मॉसफेट और बीजेटी के माध्यम से हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग का आउटपुट स्क्वायर वेव फॉर्म में मिलेगा, लेकिन वो भी कैसा, एसी. आउटपुट रेक्टिफायर. नाउ हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग के बाद में वहां से आउटपुट जाएगा
आउटपुट रेक्टिफायर को. So this output rectifier is very different. This output rectifier is very different than this input rectifier. इसमें हमने particularly mention किया है कि this rectifier section is different from the first block of the rectifier. In that the frequency of the voltage is very high. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई रहती है. द आउटपुट रिपल इज नेचुरली फिल्टर्ड बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ ओवरलैप्स बिटवीन ईच इंडिविजुअल आउटपुट पल्स. यानी एक दूसरे के ऊपर वो पल्सेस ओवरलैप होती है, इसलिए उसको फिल्टर आउट करना ज़रूरी है. तो वो प्रोसेस होता है आउटपुट रेक्टिफायर में. एंड द लास्ट ब्लॉक ऑफ SMPS इज कंट्रोल्ड एंड फीडबैक. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो हमें आउटपुट DC वोल्टेज वो भी रेगुलेटेड यानी कांस्टेंट प्रोवाइड करके देने वाला है. तो यहाँ पे हमने पर्टिकुलरली मेंशन किया इट प्रोवाइड्स द पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन PWM आउटपुट सिग्नल. द PWM कंट्रोलर प्रोवाइड्स ड्यूटी साइकिल दैट वेरीज पल्स बाय पल्स टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट DC आउटपुट वोल्टेज. यानी पल्स बाय पल्स यहाँ पे हम वेरी करेंगे बाय कंसिडरिंग सम ड्यूटी साइकिल और उसी से हमें एक्यूरेटेड DC आउटपुट वोल्टेज मिलेगा. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द SMPS. और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ SMPS एंड एक्सप्लेन. हियर दिस स्लाइड shows the application of SMPS. There are huge application of SMPS. Particularly, I mention here some. The SMPS is used in security system. SMPS यानी स्विच मोड पावर सप्लाई जो ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के ऊपर बेस होता है, वो सिक्योरिटी सिस्टम में यूज किया जाता है. इट इज यूज इन रेलवे सिस्टम. रेलवे में भी इसका यूज किया जाता है फॉर ऑन ऑफ पर्पज. इट इज ऑल्सो यूज इन मोबाइल. मोबाइल में भी स्विच मोड पावर सप्लाई यूज किया जाता है फॉर ऑन ऑफ पर्पज. इट इज यूज इन बैटरी चार्जर. बैटरी चार्जर में भी इसका यूज किया जाता है. द SMPS इज यूज इन व्हीकल्स. व्हीकल्स में भी इसका यूज किया जाता है. इट इज ऑल्सो यूज इन लाइटनिंग. यानी जहाँ पे भी लाइट का पर्पस होता है वहाँ पे भी हम इसको यूज किए करते हैं. सो दीज आर सम एप्लीकेशन. इसके अलावा हम कंप्यूटर में भी इसका यूज करते हैं. मान लीजिए कि हम कंप्यूटर बहुत देर के लिए हमने ऑन करके छोड़ दिया है, तो आफ्टर सम टाइम अगर आप उसको विजिट करते हैं कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पे, तो आपको दिखेगा कि वो अपने आप ऑफ हो चुका है. तो ये मोड के आधार पर इसका ऑन और ऑफ की प्रोसेस चलती है. अगर आपने उसको यूज नहीं किया तो वो अपने आप क्या हो जाता है, ऑफ. ओके, तो इसी को ही बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई. Thank you so much for listening this lecture very carefully. I hope you all are understand the concept of SMPS. Happy learning. Thank you.